हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ चैप्टर फंक्शंस। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने फंक्शंस के बेसिक्स के बारे में समझा था एंड व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ फंक्शंस वो देखा था। इस लेक्चर के अंदर विल लुक एट द मेथड टू फाइंड द काइंड ऑफ अ फंक्शन। एक फंक्शन वन वन है या मैनी वन है, एक फंक्शन ऑन टू है या इन टू है, ये हम किस तरह पता लगा सकते हैं। विल हैव अ लुक एट दैट. You'll get many questions based on the same concept, so this is a very important concept. And in the end we'll have a look at the composition of functions. Functions के composition का क्या मतलब होता है. So we'll look at the method to check the injectivity कि एक function वन वन है या नहीं. So अगर वो function वन वन है so that is there, and अगर नहीं है so it will automatically check that the function is many one function. So you do not have any check for many one function. If it is not one one, then obviously it is a many one function. So first step is take two arbitrary variables or values in the domain of function f, say x and y. Now solve this. F of x is equal to f of y. If on solving it gives you x is equal to y, then it's a one one function or injection. Let's have a quick example. F is a function that maps from R to R. R is a set of real values. So f हमारा एक function है which is x plus 2 that maps from R to R. अगर हमें पता लगाना है कि ये function वन वन है या नहीं है. So let's take two variables. This is step 1, x and y belonging to R. Obviously आप जो दो elements या variables लेंगे you will assume कि वो domain को belong करते होंगे, क्योंकि उसके बाहर आप नहीं जाते हैं एक function की definition के लिए. So as a second step we'll solve f of x is equal to f of y, which will give you x plus 2 is equal to y plus 2. अगर इसे solve करके we get x is equal to y, x is equal to y plus 2 minus 2, which will give you x is equal to y. So the function is an injection. अगर आपको ultimately f of x is equal to f of y solve करके x is equal to y मिल जाता है, that function is injection. Let's take another example जिसके अंदर फंक्शन जो है वो इंजेक्टिव नहीं है. So if f of x is x square for all x belonging to capital R, which is again our domain, and we take x and y which belongs to R, that is domain. So f of x equal to f of y को solve करेंगे, which will give us x square equal to y square and x is equal to plus minus y. So the function is not an injection or one function. It is an example of many one function. अब हम subjectivity check करेंगे, that is if a function is onto or not. So first step is if f is a function from a to b, then assume an element x in a and y in b. अगर आपका एक फंक्शन a से b तक मैप करता है, सो एक वेरिएबल मान लो x जो कि a सेट में होगा एंड एक वेरिएबल मान लो y जो कि b सेट में होगा. पुट f of x is equal to y. फाइंड x in terms of y. इसको रिवर्स सॉल्व करेंगे हम लोग, अभी एग्जांपल की हेल्प से भी देखेंगे. x in terms of y निकालेंगे. इफ़ वी कॉल दैट फंक्शन एज g एंड दैट फंक्शन विल बी ऑफ y. अगर आप उस फंक्शन को जो x आपने निकाला इन टर्म्स ऑफ y एक g of y से रिप्रेजेंट करें, सो योर x विल बी इक्वल टू g of y. आपका x जो है वो इन टर्म्स ऑफ y होगा, दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ y होगा. वो y की आप सारी वैल्यूज़ डालेंगे तो जो आपको x मिलेगा वो सारे एलिमेंट्स अगर a सेट को बिलोंग करते हैं, देन द फंक्शन इज एन ऑन टू फंक्शन और अ सर्जेक्शन. एक एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं. सो दिस इज अ फंक्शन f of x is equal to x cube where x belongs to R. So let's consider y जो कि इसकी कोडोमेन में होगा, which is also R. So सेकेंड स्टेप के अंदर हम लोग f of x is equal to y को सॉल्व करेंगे. So x cube is equal to y. इससे आपको क्या मिलेगा, x is equal to y raised to the power 1/3. हमने x फाइंड कर लिया है in terms of y. We'll call this as g of y, that is a function of y. ये y का एक फंक्शन बोलेंगे हम लोग. अब हम इसके अंदर जब 1/1 कोडोमेन की वैल्यूज डालेंगे यानी कि r, so यानी कि r की हर वैल्यू जब हम y के अंदर डालें तो जो हमारा x ऑब्टेन हो वो हमारी डोमेन से बाहर नहीं जाना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि दिस इज अ सर्जेक्शन.
सो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आप कोई भी रियल वैल्यू डालेंगे तो क्यूब रूट कभी भी आपको कॉम्प्लेक्स फंक्शन नहीं दे सकती है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू नहीं दे सकती है. सो जो भी आपको x की वैल्यू मिलेगी दैट विल बिलोंग टू रियल वैल्यू, that will belong to the domain. So here for all y in codomain R there exists one value in x that comes in the domain. So y की हर वैल्यू के लिए कोडोमेन R में जो आपको x मिलेगा वो डोमेन में ही रहेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा. So this is an onto function. Now consider this for an example, x square. अगर हम f of x is equal to y रखें, x square will be equal to होगा y, x is equal to प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ y. अब आप देखें अगर कि y की हर रियल वैल्यू के लिए क्या हमें x रियल मिल रहा है जो कि हमारी डोमेन को बिलोंग करने के लिए ज़रूरी है. तो अगर y नेगेटिव हो जाता है तो x जो है वो एक रियल वैल्यू नहीं रहेगी. सो दैट मीन्स जो वैल्यू आएगी दैट विल नॉट बिलोंग टू द डोमेन, वो डोमेन से बाहर चला जाएगा. सो दिस इज नॉट एन ऑनटू फंक्शन. So this is an into function. Now the composition of functions. Consider two functions f mapping from a to b and g mapping from b to c. Assume three arbitrary variables x, y and z in a, b and c respectively. So for all x in a, x जो है वो a को belong करेगा, y जो है वो हम बोलेंगे b को represent करेगा या belong करेगा, और z जो है वो हम बोलेंगे c को रिप्रेजेंट करेगा, ये बिलोंग करेगा. फॉर ऑल x इन a देयर एग्जिस्ट अ y इन b सच दैट f of x इज इक्वल टू y. जो हमारा फंक्शन f of x है, जो हमारा फंक्शन है उसके अंदर क्योंकि हमने a को x से रिप्रेजेंट किया है, सो इफ इट इज मैपिंग फ्रॉम a टू b सो दिस विल गिव यू f of x विल गिव यू y. सिमिलरली जो आपका g फंक्शन है वो b से c तक है, सो g के अंदर y डाल के you will get z. So we define a function from a to c. हम एक डायरेक्ट फंक्शन डिफाइन करते हैं जिसके अंदर हम x की वैल्यू डालें और हमें z मिल जाए. इस वाले फंक्शन में आपने x की वैल्यू डाली, y मिल गया, देन y की वैल्यू एक फंक्शन में डाली, आपको z मिल गया. हम डायरेक्टली एक ऐसा फंक्शन बनाएं जिसमें हम x की वैल्यू डालें और हमें z मिल जाए. So that will be your composite function from a to c. Writing z in terms of x called the composition of f and g. इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट करेंगे, g would be a function of f of x और g of f of x. So here is the example for the same. यहाँ पर f of x हमारा जो है वो r to r है 2x plus 4, g जो है वो भी r to r है x square plus 1. अब हमें g of f of x फाइंड करना है या g of f फाइंड करना है. सो सिंस योर f of x इज इक्वल टू 2x plus 4, इसे हम y से रिप्रेजेंट कर दिया गया. एंड इफ वी सी व्हाट इज अ g of x इज विच इज़ x स्क्वायर प्लस 1. सो अगर हम g of y निकालें तो वो क्या होगा, x को y से रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे g of y हो जाएगा एंड दिस विल बी y स्क्वायर प्लस 1. y हमारा क्या है 2x plus 4, y को 2x plus 4 से रिप्लेस कर देंगे, उसका स्क्वायर प्लस 1. दिस विल बी g ऑफ f of x, क्योंकि y क्या था f of x. सो दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय g of f. इसे आप सॉल्व करेंगे, सो दिस विल गिव यू 4x स्क्वायर प्लस 17 प्लस 16x. दिस इज योर कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस g of f. इसी तरह f of gx अगर आपको निकालना हो तो f of x के अंदर x के बदले g of x डाल देंगे, which is nothing but x square plus 1. So it will give you 2 of x square plus 1 plus 4, which again on solving will give you 2x square plus 6. Now you can see that these two are not equal. This is an important thing to remember. Composition functions के अंदर g of f is might or might not be equal to f of g.